हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर। हम हैं आपके होस्ट, आपका दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, टुडे दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आज दोस्तों वी आर एक्चुअली आंसरिंग one of our users, Akash. He had sent us a question, and this presentation में दोस्तों हम सिर्फ आकाश की जो question है, we are going to try to answer that question. So first of all, Akash, thank you for posting this question, and we hope that the solution that we present in this presentation is something that actually solves the question. So we feel first of all that जो question आकाश ने भेजी है that actually relates to topic parallel lines and parallelogram. So आइए चलिए, let us find out what the question was. So Akash, he had sent us a question which is actually read: ABC is an isosceles triangle in which AB equals AD, AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB. Show that ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है. DAC, angle DAC equals angle BCA, and second ABCD is a parallelogram. So Akash, यहाँ पे while looking through the question, we feel that there is one small टाइपिंग एरर जो शायद आपने एक्सीडेंटली की है. सो वी फील द क्वेश्चन शुड रीड लाइक दिस, एंड वी विल टेल यू व्हाई वी फील दिस वे. ABC is an isosceles triangle in which AB equals AC. I think आपने यहाँ पे लिखी है that AB equals AD. We feel that this AD actually should be equals AC, यानी कि AB equals AC, and the rest remains the same. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Show that हमें यही दोनों चीज जो आपने लिखी है, we have to show these two things. So now if you feel, Akash, that what we have mentioned as the question is correct, please continue the presentation. अगर आप सोचते हो कि what you have mentioned is correct, then please we would like you to elaborate a little bit more. But we feel that this is more accurate, and we feel that आपने यहाँ पे एक typing error की है. So now for the rest of the presentation we will take this as our question and we will try and solve this. So चलिए, let us find out how we can approach this question. So we rewrite the question again. Now पहली चीज दोस्तों जो हमें करनी है वो है ये that we must first draw the diagram. अगर आपको question में diagram दी गई है तो that is even more easier. It makes things much more easier for आपको to clearly visualize कि question कैसी है. लेकिन अगर आपके पास diagram नहीं है, like in this case we don't have the diagram, so हम question को we will read it step by step and we will try to construct our own diagram. So हमें मालूम है that ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB equals AC. So पहली चीज ये है दोस्तों, we will try to draw an isosceles triangle. So हमने यहाँ पे एक isosceles triangle draw की है such that AB जो है is equal to AC. Next दोस्तों हमें दी गई है that AD bisects exterior angle PAC. So exterior angle मतलब दोस्तों ये है कि we have to draw an exterior angle, and PAC का मतलब ये है दोस्तों AC. So इसका मतलब ये है कि P will be somewhere over here, right? So angle में, exterior angle में you have PAC, exterior angle PAC. Now ये point P कहाँ पे हमें मालूम नहीं है, but we know that base of the angle is AC. इसका मतलब ये है कि आप क्लियरली अगर आप इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहोगे जिसकी बेस AC होगी, सो दैट मस्ट बी लाइक दिस. इसका मतलब यह है हमें BA को वी हैव टू एक्सटेंड इट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अस्यूम दोस्तों, दैट इज व्हाट वी विल डू. सो हम BA को ऐसे करके एक्सटेंड करते हैं. नाउ वी विल एक्सटेंड दिस टू अ पॉइंट. कहीं पे यहां पे एक पॉइंट है P बोल के, देयर इज अ पॉइंट P समवेयर ओवर हियर. नाउ हमें यह दी गई है दैट ये जो लाइन है AD is such a line which actually bisects this angle. ये जो एक्सटर्नल एंगल बनती है आप जब BA को एक्सटेंड करते हो PAC, अभी इस एक्सटर्नल एंगल को लाइन AD it bisects this angle. एंड उसके बाद दोस्तों हमें दी गई है दैट we have been given that CD जो है this is parallel to AB. इसका मतलब ये है अगर आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हो टू फाइंड आउट कि ये पॉइंट D कहां पे है, यू विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन CD इन सच अ वे दैट CD इज पैरेलल टू AB. सो अभी बेस्ड ऑन दिस फिगर हमें दो चीज दिखानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव DAC ये वाली जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाली एंगल इक्वल्स BCA.
BCA, यानी कि ये वाली एंगल। सो हमें दिखानी है ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड चीज हमें दिखानी है दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। सो दोस्तों नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। सो एक काम करते हैं, चलिए लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द स्ट्रैटेजी of how we will approach this question. चलिए let us quickly do the markings again. So we have angle PAC which is actually bisected by line AD. ये है line AD। और अभी दोस्तों आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अच्छा हमें ये भी दी गई है that AB is parallel to CD। आपको मालूम है दोस्तों जब पैरेलल लाइंस होती है we actually draw an arrow to show कि कौन सी दो लाइनें पैरेलल है ना। दोस्तों फ्रॉम अ स्ट्रेटेजी स्टैंड पॉइंट आपको देखनी है, आपको दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो प्रूव करनी है ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करनी है। सेकेंड चीज आपको प्रूव करनी है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो यहां पे दोस्तों आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप इफ यू गो बैक टू द सीरीज लर्निंग क्वाड्रिलैटरल्स, वहां पे जब हमने बात की थी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल कॉल्ड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है दोस्तों दैट इट इज सच ए क्वाड्रिलैटरल जहां पे बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर हमें दिखानी है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर ऐसा होता है इट मींस दैट हमें ऑलरेडी मालूम है AB पैरेलल टू CD क्योंकि ये दी गई है हमें। अगर हम कैसे भी करके दिखा दे AD पैरेलल टू BC, देन हम कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो ये है दोस्तों पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज आप देखिए दोस्तों, यहां पे आपके पास बहुत सारे एंगल्स दी गई है, यू हैव एंगल हियर हियर हियर, राइट। सो आपको जो यू हैव टू एक्चुअली यूज दीज एंगल्स। सो समहाउ आपको इस क्वेश्चन में यू हैव टू यूज एंगल्स एंड यूजिंग द एंगल्स यू हैव टू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC। सो ये है दोस्तों स्ट्रैटेजी, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो। सो द टेक अवे फॉर यू इज दैट आपको इस क्वेश्चन में आपको देख के मालूम चलनी है कि आपको दिखानी है AD पैरेलल टू BC एंड यू हैव टू यूज रिलेशनशिप अमंग एंगल्स टू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC। सो चलिए दोस्तों नाउ विदाउट मच डिले लेट अस डाइव राइट इन। सो हमें पहले दी गई है AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। सो दोस्तों अगर AB इक्वल टू AC है, राइट, लेट अस नाउ गो अहेड एंड प्रूव इट। उसके बाद दोस्तों वी आर गोइंग टू राइट इट स्टेप बाय स्टेप। सो AB इक्वल टू AC हमें दी गई है, AB इक्वल टू AC। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है दैट एंगल ABC, ये वाले जो एंगल है ABC is actually equal to angle ACB, right, ACB। so ऐसा क्यों है दोस्तों, why are we saying कि ये दोनों एंगल this angle and this angle are equal? क्योंकि दोस्तों ABC is a isosceles triangle जहां पे AB equal to AC है। हमें मालूम है दोस्तों that angles opposite to equal sides are always equal, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनकी जो ऑपोजिट एंगल्स है, AC के ऑपोजिट है एंगल B एंड AB की ऑपोजिट है एंगल C। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सो दोस्तों इसे वी कॉल दिस, मे बी मान लीजिए चलिए हमारी पहली इक्वेशन। अभी नेक्स्ट दोस्तों नाउ यू हैव टू लुक एट एंगल PAC। अभी आप देखोगे एंगल PAC जो है PAC। सो दोस्तों somehow we have to actually narrow down our solution ताकि we talk about these angles, all these angles यहां पे, राइट। सो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी we will write PAC। ना दोस्तों रिमेंबर PAC एक्चुअली एक्सटर्नल एंगल है। सो इसका मतलब ये हुआ PAC must be equal to angle this plus this, that is PAC must be equal to angle ACB जो कि ये वाली एंगल है प्लस एंगल
BC, जो कि ये एंगल है। सो आप कहोगे वाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बिकॉज दोस्तों आप रिकॉल कीजिए एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। सो ये एक्सटर्नल एंगल हो गई, सो इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो अभी दोस्तों इस इक्वेशन में हमें मालूम है ये जो है ABC इज इक्वल टू ACB। सो अभी ABC को हम हटा के वी विल राइट ACB। सो अगर आप ऐसा लिखते हो दोस्तों, सो आपके पास यहाँ पे आपके पास ACB ऑलरेडी है, यहाँ पे ACB प्लस इसके जगह अगर आप फिर से ACB लिखते हो ऐसे करके ACB, सो दोस्तों व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव 2 ACB, 2 एंगल ACB। चलिए इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो ये जो हमारी एंगल है PAC इक्वल्स ट्वाइस ACB। सो दोस्तों हमें मालूम है कि दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग लिटिल कंजेस्टेड एंड ऑल दैट, बट आप यू स्टे विथ अस ऑन द एक्चुअल द जिस्ट ऑफ हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज बाद में वी आर गोइंग टू शो यू कि कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आप नीटली क्लीनली हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन एज अ सोल्यूशन। सो नाउ अगेन दिस इज फोकसिंग बैक। सो PAC जो PAC है हमारी ये पूरी की पूरी एंगल इज एक्चुअली ट्वाइस दिस एंगल। नाउ दोस्तों वी वांट टू एक्सप्रेस PAC इन टर्म्स ऑफ ये दोनों एंगल्स। सर आप देखिएगा फ्रॉम द फिगर हम कह सकते हैं दैट PAC इज इक्वल टू एंगल PAD प्लस DAC, राइट, प्लस DAC। अभी दोस्तों हमें मालूम है दैट PAD और DAP दोनों इक्वल है, क्योंकि AD इज एन एंगुलर बाइसेक्टर, राइट। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी PAD को हटा के PAD के जगह वी विल राइट DAC। सो PAD को अभी हम हटा के इसके जगह हम लिखते हैं एंगल DAC, एंड यहां पे वी ऑलरेडी हैव एंगल DAC। सो दोस्तों सो वी गेट 2 एंगल DAC। चलिए इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन। सो आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन बेसिकली जो PAC है इट इज ट्वाइस ACB, मतलब ट्वाइस ACB, एंड सिमिलरली अगेन PAC जो है इट इज ट्वाइस दिस एंगल। सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट एंगल ACB ये वाले जो एंगल है इज एक्चुअली इक्वल टू, मतलब ये जो एंगल ACB है इज इक्वल टू एंगल DAC। सो दोस्तों हमने देखा वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंगल। सो दोस्तों आप नोटिस कीजिए हमने अभी अभी प्रूव किया बिकॉज दोनों ही PAC है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम कह सकते हैं PAC इज इक्वल टू PAC, मतलब ट्वाइस ACB इक्वल्स टू ट्वाइस DAC, यानी कि ये जो ACB है इज इक्वल टू DAC। सो वी हैव एक्चुअली जस्ट नाउ प्रूव्ड ये दोनों एंगल इक्वल है। सो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। अभी फॉर द सेकेंड पार्ट दोस्तों आप अगर गौर से इफ यू लुक एट लाइन AD एंड BC आप नोटिस कीजिएगा दैट ये जो दो लाइनें हैं दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल AC इन सच ए फैशन कि ये जो इंटीरियर एंगल्स बनी है ऑन द ऑल्टरनेट साइड, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल। सो दोस्तों आपको मालूम है इफ यू रिकॉल अगर कोई भी दो ऐसी लाइनें हैं विच आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ऐसे करके कि उनकी इंटरनल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट साइड में जो इनसाइड इंटीरियर एंगल्स अगर ये दोनों इक्वल होती है, हमें मालूम है दोस्तों देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इन दिस केस ऑल्सो दोस्तों AD और BC ये दोनों ऐसी लाइनें हैं which are intersected by transversal AC in such a way that alternate interior angles are equal. Because of this we say that AD is parallel to BC. और आपको मालूम है दोस्तों अगर AD parallel to BC है then ABCD is a parallelogram, क्योंकि ये दोनों parallel है ये दोनों parallel है। So दोस्तों this is how we prove, this is how actually we have just proved that दो चीजें जो हमें प्रूव करनी थी, एक तो ये दोनों एंगल इक्वल है एंड देन ABCD is a parallelogram। अभी दोस्तों लाइक हमने आपसे पहले कहा था कि वी विल नाउ शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ यू शुड राइट इट। चलिए लेट अस क्विकली गो थ्रू दैट। शुरुआत करते हैं बाय राइटिंग व्हाट इज गिवन टू अस।
तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, वी हैव रिटन इट आउट हियर। उसके बाद दोस्तों अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है कि हमें व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू द फिगर दैट वी आर गोइंग टू यूज टू डू आवर प्रूफ। हमें मालूम है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हमें यह भी मालूम है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंड इट इज गिवन दैट सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अभी दोस्तों हमें क्या प्रूफ करनी है? हमें ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है, एंड देन दोस्तों वी एक्चुअली स्टार्ट द प्रूफ इटसेल्फ। सो नाउ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट ए बी इज इक्वल टू ए सी। नाउ दोस्तों आपको एक चीज हमने पहले भी कहा है ड्यूरिंग ऑल द वेबिसोड्स, दैट जब कभी आप ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स लिखते हो, स्पेशली व्हेन यू आर प्रूविंग समथिंग और सॉल्विंग एनी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, यू मस्ट एक्चुअली प्रोवाइड अस अ रीजन कि वाई यू आर सेइंग समथिंग। अगर आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है ए बी इक्वल्स ए सी, हमने लिखा है विद इन ब्रैकेट इट इज गिवन, सो वी आर गिविंग अ रीजन कि वाई वी आर राइटिंग ए बी इक्वल टू ए सी। ये और भी मोर इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग जो क्वेश्चन में दी नहीं गई है। सो आपको मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, यू मस्ट ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब कभी आप सॉल्व कर रहे हो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस एंड यू आर राइटिंग एनी स्टेटमेंट पर्टिकुलरली जो कि गिवन नहीं है, यू मस्ट प्रोवाइड अ रीजन। सो दोस्तों यहाँ पे वी हैव ए बी इक्वल्स ए सी विच इज गिवन। इसके वजह से वी हैव एक्चुअली दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? बिकॉज दोस्तों ए बी इक्वल्स ए सी एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे कहते हैं फर्स्ट, चलिए कहते हैं दिस कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट इक्वेशन। सो दोस्तों नेक्स्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू से दैट PAC, ये जो हमारी पूरी की पूरी एंगल है PAC, दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्यों? एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। एक्चुअली वी शुड राइट यहां पे दीज आर एक्चुअली, ये जो दोनों एंगल्स है, दीज एंगल्स आर इंटरनल एंगल्स, राइट? इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो देन दोस्तों व्हाट वी हैव इज बेसिकली now so PAC equals ABC plus ACB, right, जो यहां पे है। and then दोस्तों what we have done is जहां पे ABC है इसके जगह, ABC के जगह we are writing actually ACB because from 1 जो कि थी हमारी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, राइट? सो हमें क्या मिलती है दोस्तों? we get PAC equals twice ACB। so ये जो बड़ी एंगल है, दिस एंगल is actually equals 2 times this छोटी angle. That is what we have got. इसे कहते हैं condition 2. So then next दोस्तों we are going to move on. So अभी now so हमने establish की है कि ये जो बड़ी angle है it is actually twice this angle. So now दोस्तों what we do, we are going to now involve these two angles. अभी हमें मालूम है PAC actually is equal to PAD plus DAC, right? Now next what we see is that but it is given AD bisects PAC। ये जो AD है it bisects PAC, so इसका मतलब ये हुआ PAD equals DAC। so PAD जो है ये equals this। so अभी हम क्या करते हैं, substituting PAD by DAC in 2। 2 मतलब actually this should be in 3 not 2। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। सो यहां पे PAD के जगह हम वी विल पुट DAC बिकॉज दोनों इक्वल है, PAD एंड DAC इक्वल है। सो इसके जगह वी आर गोइंग टू राइट दिस। सो यहां पे वी विल सी दैट PAC इक्वल्स ट्वाइस DAC। सो आप नोटिस कीजिए दोस्तों, जो कंडीशन 2 है वहां पे वी गॉट सेम PAC एक्चुअली ट्वाइस ACB, एंड अभी यहां पे वी आर गेटिंग PAC इक्वल्स ट्वाइस DAC। सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दैट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सो इसे वी राइट इट इन दिस फैशन कि फ्रॉम 2 and 4 वी गेट ACB जो कि ये वाली एंगल है इक्वल्स DAC। मतलब कि हमने दिखाया अभी अभी आपको, वी हैव प्रूव्ड कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो दोस्तों दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ जो हमें प्रूव करके दिखानी थी, राइट? सो नेक्स्ट दोस्तों आप अभी देखिएगा, सो अगर हमने अभी अभी प्रूव की है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल,
So now for lines AD and BC, they are intersected by a transversal AC, right, this transversal, such that ACB equals DAC, that is alternate internal angles are equal. अगर ऐसा होता है दोस्तों, it means AD, ये वाली line, this line must be parallel to BC, because ये दोनों एंगल इक्वल है and these are alternate interior angles. ये दोनों एंगल इक्वल है जो अभी हमने प्रूव की है, इसके वजह से ये दोनों लाइनें पैरेलल है. सो दोस्तों व्हाट डू वी हैव नाउ? सो अभी हमारे पास वी हैव दिस and we also have this parallel to this because this is already given to us. So AD parallel to BC अभी हमने प्रूव की है and CD parallel to AB. So quadrilateral ABCD, actually we have written ADCB, हमने यहाँ पे ADCB लिखी है. आप इसे ADCB लिखिए या फिर आप इसे ABCD लिखिए, दोनों एक ही चीज है. So this quadrilateral is a parallelogram and we say hence it is proved. So दोस्तों, we hope that you have enjoyed this presentation, and again Akash, thanks for posting this question, and we hope that actually through this presentation we have been able to answer the question. So if there are any other questions please let us know. So आज के इस presentation में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.